Good morning, dear students. In previous video, I discussed with you the male gametophyte in the flowering plants. Today, we are starting the female reproductive system in the organism. Female reproductive system in the organism or in the plants. देखिए यहां पर गायनिशियम जो है इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. यू नो वेरी वेल plants or angiosperm plants have the flower, and flower has two reproductive organs, male reproductive organs androecium and female reproductive organs gynoecium. So gynoecium is the female reproductive organ of the plant. This gynoecium made up of carpel. It is the structure of carpel. ये कार्पल की स्ट्रक्चर है. This carpel may be 1, 2, 3 or many. Carpel may be 1, 2, 3 or many. When the number of carpel is 1, it is called monocarpellary. If the carpels are 2, it is called bicarpellary. And when the carpels are 3, it is called tricarpellary. And when the carpels are many, it is called multicarpellary. The number of the carpels decide whether the gynoecium is monocarpellary, bicarpellary, tricarpellary, tetracarpellary or multicarpellary. अब ये जो कार्पल्स हैं, they make the gynoecium, and a free carpel is called the pistil. A free carpel is called the pistil. अब ये जो कार्पल्स हैं, they may be having the two different type of elements. Number one, apocarpus. Apocarpus का मतलब है when the carpels are free. Carpels are not joined. Carpels are free. This condition is called apocarpus. Example, ranunculus, एक aquatic plant है, और Michelia. In ranunculus and Michelia have the apocarpus condition. Syncarpus, when the carpels are fused, are joined, it is called syncarpus. Syncarpus का मतलब फ्यूज होकर के सिंडिकेट बना लेते हैं, एक जॉइंट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसको हम syncarpus कहते हैं. एग्जाम्पल, पोपी एंड हिबिस्कस. हिबिस्कस और पोपी के अंदर syncarpus कंडीशन है. यू शुड बी नो इट वेरी वेल. अब हम आते हैं पार्ट्स ऑफ पिस्टिल. नहीं बताया, फ्री यूनिट of the gynoecium is called the pistil. Pistil has three parts: stigma, style, and ovary. Stigma, style, and ovary. Stigma is this number one part is the stigma. Stigma is an umbrella-shaped structure where the pollen grains are settled down. Where the pollen grains are settled down after pollination. Second is the style, which is elongated structure through which the pollen tube is passed. इससे pollen tube आएगी, जो आपका ये स्टाइल है, इसके थ्रू क्या आएगी? pollen tube आएगी. ये pollen tube है. अब इसके बाद यहां पे थर्ड पार्ट, dilated part of the carpel is called the ovary. ये पार्ट जो डायलेटेड पार्ट है, इसे आप ओवरी कहेंगे. सो इट इज कॉल्ड द ओवरी. ये जो डायलेटेड पार्ट है, थर्ड पार्ट जो है, इसको आप यहां पे ओवरी कहेंगे.
ovary is the dilated part or basal part of the carpel. This ovule or this ovule is also the part of the ovary. Ovary has chamber. ये ओवरी के अंदर देखिए यहां पर ये कैविटी है. दिस कैविटी इज कॉल्ड ओवेरियन कैविटी और लोक्यूल्स. ये वाली इट इज द ओवेरियन कैविटी और लोक्यूल. अब ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द लोक्यूल्स, it may be unilocular when the single locular is there or single chamber is there. If the chamber are two, bilocule or bilocular, or if the chamber three, trilocular, or if the chambers are many, polylocular structure कहलाते हैं. यानी कि ovary has a cavity. That cavity is called the ovarian cavity, or in that ovarian cavity ovule is present. अब ये जो है दैट्स मे बी, अगर ये एक है तो यूनिलोकुलर, दो चैम्बर है यहां तो बाइलोकुलर. अब देखिए ये चैम्बर है तो यूनिलोकुलर, अगर यहां पे दो चैम्बर तो बाइलोकुलर, अगर तीन चैम्बर है तो ये ट्राइलोकुलर, और अगर मैनी है तो मल्टीलोकुलर हो जाएगी और पोलीलोकुलर हो जाएगी. अब ये ओवरी है, दिस ओवरी हैज द ओव्यूल. ये ओव्यूल है इसके अंदर, दिस इज द ओव्यूल. दिस ओव्यूल इज मेड ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल. ये पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है. इसके अंदर जो है ये पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं जो कि न्यूसेलस कहलाती है. पैरेन्काइमेटस सेल्स विद इन द ओव्यूल इज कॉल्ड द न्यूसेलस. ये जो न्यूसेलस है इट इज सराउंडिंग बाय द कवरिंग. प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, यहां पर प्रेजेंट होती है. ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है इट इज कॉल्ड इंटेगुमेंट. प्रोटेक्टिव कवरिंग विच इज प्रेजेंट और विच एनक्लोज द ओव्यूल इज कॉल्ड इंटेगुमेंट. इंटेगुमेंट मे बी 1, 2. Integument may be 1 or 2. If the integument are 1, unitegmic, or if the integuments are 2, bitegmic. These integuments are open towards the lower side. ये lower side पे खुली होती है जिसको कहते हैं माइक्रोपाइल. Integument that is open to the lower side, it is called micropyle. अब यहां पर ये जो ओव्यूल है, अब दिस ओव्यूल ये प्लेसेंटा से अटैच होता है बाय ए स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड फ्यूनिकल. ये ओव्यूल है, ये एक स्ट्रक्चर से अटैच है विद द वॉल ऑफ द ओवरी. इट इज कॉल्ड फ्यूनिकल. फ्यूनिकल इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द ओव्यूल एंड प्लेसेंटा. Placenta present at the base of the ovary, in the wall of the ovary, which is made of parenchymatous cells. The end of funicle, which is near to the ovule, the end of the funicle, which is near to the ovule, it is called hilum. अगर आप देखिए, you take the pea seed, तो pea seed जब फ्यूनिकल से अटैच होता है उसको हम डिटैच करते हैं तो एक व्हाइट कलर का मार्क होता है. दैट व्हाइट मार्क इज कॉल्ड द हाइलम. उसे हम हाइलम कहते हैं. अब यहां पर जो ओव्यूल्स है दे आर द डिफरेंट पार्ट्स. इसमें फ्यूनिकल है, न्यूसेलस है, माइक्रोपाइल, इंटेगुमेंट. फ्यूनिकल का काम है टू अटैच द ओव्यूल विद द वॉल ऑफ द ओवरी. न्यूसेलस जो है, दिस इज द न्यूसेलस पार्ट. दिस न्यूसेलस पार्ट है. दिस न्यूसेलस पार्ट स्टोर द फूड मटेरियल एंड प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. जो एम्ब्रियो सेप डेवलप होता है उसको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. कौन? न्यूसेलस विच इज प्रेजेंट इन द ओव्यूल. माइक्रोपाइल की ओपनिंग है, इसके थ्रू पोलन ट्यूब एंटर करती है. इसके थ्रू पोलन ट्यूब एंटर. इसके बाद इंटेगुमेंट आती है जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करते हैं. मैंने पहले बताया आपको
इंटेग्यूमेंट एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करता है। ये एक और दो हो सकती है, अगर एक है तो यूनिटैगमेंट और दो है तो बाइटैगमेंट। तो यहां पर देखिए फ्यूनिकल का काम है अटैचमेंट द ओव्यूल विद द ओवरी, न्यूसेलस प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो सेल। माइक्रोपाइल यहां से पोलन ट्यूब एंटर करेगी एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, और इंटेग्यूमेंट का काम है प्रोटेक्शन का करना। तो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ओव्यूल। अब यहां पे प्रोसेस होती है मेगास्पोरोजेनेसिस। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो आपका ओव्यूल है, ये ओव्यूल है, सी ये ओव्यूल है। इस ओव्यूल के अंदर यहां पर न्यूसेलस है। The cells of nucellus become different from the rest of the cell, और जो सेल डिफरेंट होती है that is towards the micropyle, वो माइक्रोपाइल के towards होती है। अब this cell is called the archisporial cell। उस सेल को हम आर्किस्पोरियल सेल्स कहते हैं, जो कि हमारी डिप्लॉयड सेल्स होती है। ये आर्किस्पोरियल सेल्स है जो कि हमारी डिप्लॉयड है। अब इस आर्किस्पोरियल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, पेरीफिटल डिवीजन होता है, और यहां पर दो सेल बनती है, एक पैराइटल सेल और सेकंड इज द स्पोरोजीनियस सेल। ये दोनों सेल पैराइटल सेल एंड स्पोरोजीनियस सेल बोथ आर डिप्लॉयड, बोथ आर डिप्लॉयड। अब इन स्पोरोजीनियस सेल में यहां पर माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, और इस माइटोटिक डिवीजन के बाद these स्पोरोजीनियस सेल्स मेक ए क्लस्टर ऑफ द सेल। स्पोरोजीनियस सेल्स undergo the process of mitotic division and make a cluster of the cell which is called microspore mothers, which is called the megaspore mother cells। इन्हें मेगास्पोर मदर सेल्स कहते हैं। यानी यहां पर स्पोरोजीनियस डिवीजन होता है, तो डिवीजन के बाद दे मेक द क्लस्टर सेल व्हिच इज कॉल्ड द मेगास्पोर मदर सेल्स। अब इन मेगास्पोर मदर सेल में से कोई भी एक सेल दैट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस डिवीजन, अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस डिवीजन, और यहां पर ये चार सेल बनती है, 4 cells आर प्रोड्यूस्ड एंड दे आर अरेंज्ड इन ए लाइन। It is called linear tetrad. After the meiosis division, megaspore mother cells undergoes the process of meiosis division और produce करती है 4 cells. All these cells are haploid. Out of them 3 are degenerated and which is towards the micropyle। जो micropyle की साइड में होती है वो फंक्शनल होती है, जिसे कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल। 3 डिजेनरेट हो गई, एक फंक्शनल रह गई। जो फंक्शनल रह गई उसको आप फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल्स कहेंगे। ये हैप्लॉइड होंगी, क्या होगी? हैप्लॉइड होगी। और जब ये हैप्लॉइड होगी तो इससे हमारा एम्ब्रियो सेल बनेगा। अब ये जो हैप्लॉइड सेल है कौन सी? जो कि डिजेनरेशन के बाद बची है, जो डिजेनरेशन के बाद बची है वो सेल्स हमारी जो है यहां पर हैप्लॉइड है। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल है, ये जो फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल्स है, अब ये माइटोटिक डिवीजन के अंदर जाएगी। किसमें जाएगी? माइटोटिक डिवीजन में जाएगी। जब ये माइटोटिक डिवीजन में जाएगी तो ये 3 माइटोटिक डिवीजन होंगे, 3 माइटोटिक डिवीजन यहां पे होंगे। और 3 माइटोटिक डिवीजन होने के बाद इस जो आपकी फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल्स है यहां पर 8 न्यूक्लियाई आ जाएंगे। मेगास्पोर मदर सेल्स जो फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल्स है वो यहां पे माइटोटिक डिवीजन होगा, 3 माइटोटिक डिवीजन होगा, और 3 माइटोटिक डिवीजन 8 न्यूक्लियर स्टेज आ जाएगी। अब इन 8 न्यूक्लियर स्टेज आ गई। अब ये 8 न्यूक्लियर से 7 सेल स्ट्रक्चर बनेगी। इसमें से जो 3 सेल्स हैं
they make the antipodal cell which are to the opposite side of the micropyle. ये माइक्रोपाइल है, इसके अपोजिट साइड में जो सेल्स हैं इनको हम एंटीपोडल सेल्स कहेंगे. वी कॉल टू देम द एंटीपोडल सेल. इसके बाद ये एंटीपोडल सेल्स है और ईच एंटीपोडल सेल इज हैप्लॉइड. तो अब देखिए टू द लोअर साइड टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल, आउट ऑफ द रिमेनिंग 5, 3, 1 make the egg cell which is in the center and 2 cells, 2 cells इसके लेफ्ट एंड राइट होंगे जिन्हें साइनर्जिड सेल्स कहेंगे और हेल्पिंग सेल्स कहेंगे. इनको साइनर्जिड सेल्स या हेल्पिंग सेल्स भी कहते हैं. They are called the helping cells. They are called the helping cells. अभी जो हेल्पिंग सेल्स है, हेल्पिंग सेल्स और एग सेल्स ये मिलके बनाती है एग एपरेटस. और यहां पर वन न्यूक्लियाइड कम फ्रॉम द एंटीपोडल सेल एंड वन कम फ्रॉम द माइक्रोपाइल सेल. ये दोनों मिलकर के दो न्यूक्लियर फीड होकर के पोलर न्यूक्लियर बनाते हैं जिसको अब डिप्लॉयड होता है और इसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं. वी कॉल इट द सेकेंडरी न्यूक्लियस विच इज डिप्लॉयड. और ये यहां पर स्ट्रक्चर बन जाती है एम्ब्रियो सैक की और ये एम्ब्रियो सैक बाद में यहां पर सीड बनाता है. मतलब यहां देखिए मेगास्पोरोजेनेसिस में जब मेगास्पोर बनेंगे फ्रॉम द मेगास्पोर सेल्स, यानी मेगास्पोर विल फॉर्म फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस. तो ये आर्किस्पोरियल सेल्स है, ये पेरिकाइल डिवीजन होगा, इसमें पैराइटल सेल्स और स्पोरोजीनियस सेल्स बनेंगी. ये पैराइटल बाहर की तरफ होगी और स्पोरोजीनियस जो है ये सेल डिवाइड होकर के मेगास्पोर मदर सेल्स बनाएगी. ये पूरा क्लस्टर होगा और इसमें से कोई भी एक सेल गो अंडर द प्रोसेस ऑफ मियोसिस डिवीजन. 4 सेल बनेगी, 3 डिजनरेट हो जाएंगी and the cell which is towards the micropyle it become functional megaspore mother cells. This megaspore mother cell is haploid. अब यहां पर ये जो मेगास्पोर मदर सेल्स है इसमें माइटोटिक डिवीजन होंगे, 3 माइटोटिक डिवीजन होंगे और 8 न्यूक्लियाई यहां पे प्रोड्यूस हो जाएंगे. इन 8 न्यूक्लियाई में से 3 एंटीपोडल रहेंगे जो हैप्लॉइड होंगे. यहां पर एक एग सेल होगी, एक साइनर्जिड, ये भी हैप्लॉइड होंगे. दोनों कलेक्टिव मिलकर एग एपरेटस बनाएंगे और सेंटर में यहां पर पोलर न्यूक्लियाई होगा जिसमें 2 न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे. जो सेकेंडरी न्यूक्लियर पोलर न्यूक्लियर बने जो डिप्लॉयड है. उसके बाद जब ये एम्ब्रियो सैक बन जाता है और फीमेल गैमेटोफाइट बन जाता है, बाद में इससे सीड का फॉर्मेशन होता है. थैंक यू फॉर दिस वन.